Good morning, India. Good morning, friends. Welcome back, all of you. In this video, the question pattern is something changed in this video. Everything in is English, but don't worry, I would explain something in Hindi. But this is a long series of questions, and there is related to current affair mostly questions. So let's start without any waste of time. Let's see. Big series of questions about various examinations, especially for UPSC. Don't worry, there could be question from very many sections. First question from polity. Which of the following statement are correct? Number 1, parliamentary privilege refers to the right and immunities enjoyed by the parliament as an institution and by MPs in their individual capacity. Second option, Constitution of India does not specify if any of the privileges and allows the parliament to define them by passing a suitable law. Okay, आपके ऑप्शंस स्टार्ट हो चुके हैं, समय शुरू हो चुका है. थिंक अबाउट इट. ओके, आपको ध्यान से पढ़ना था. करेक्ट स्टेटमेंट मांगा गया था, इसका सही जवाब है only and only 2 is the right statement. 2 is absolutely correct. Let's see something about it. There is nothing explanation because in this video I changed something. मैं इस वीडियो में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा. मैं क्वेश्चन पैटर्न को मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है और इसमें मैं क्वेश्चन की सीरीज जारी करूँगा. थोड़ा एक्सप्लेनेशन किसी में हो सकता है. Parliamentary privilege refers to the rights and immunities enjoyed by the parliament as an institution and MPs in their individual capacity. Is absolutely wrong statement. Which of the following statements are correct regarding the Representation of People's Act? The Act deals with the qualification and disqualification of the members of both the houses of the Parliament. Okay, according to it, a person convicted of any offence and sentenced to imprisonment not less than 2 years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for the further period of 6 years since his or her release. Third, it provides the condition for the qualification of the voters to be eligible for voting. Okay, which ध्यान दें, it provides. उसके बाद which is the given statement is are incorrect. Incorrect पूछा गया है, so ध्यान पूर्वक पढ़िए इसको. चलिए, इसका सही जवाब है, इनकरेक्ट में पूछा गया था, इसका सही जवाब है बी इज द राइट आंसर. 1 और 2, 1 और 2 एब्सोल्युटली गलत है. स्टेटमेंट 1 और 2 आर इनकरेक्ट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 प्रोवाइड्स फॉर द कंडीशन फॉर द क्वालिफिकेशन द वोटर्स टू बी एलिजिबल फॉर वोटिंग. और यहाँ लिखा हुआ था 1951. Which of the following statement are correct regarding the POCSO Act? POCSO Act के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन आपको सही है. Recent amendments have included the provision of the death penalty for aggravated sexual assault on children. The Act provides for levying fines and imprisonment to curb child pornography. This is simple question, I think. पॉक्सो एक्ट के बारे में अभी जो हालिया संशोधन हुआ था उसमें दोनों बातें सही थी. 1 और 2 इज़ द राइट स्टेटमेंट. कैटेगरी 4 का क्वेश्चन है आपका, पॉलिटी से ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिगार्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन द क्रैकर्स? दिस गाइडलाइंस आर वैलिड ओनली फॉर द एनसीआर वेयर सीवर पोल्यूशन इज ए ग्रेव कंसर्न. The guidelines prohibit bursting of the crackers in it around 100 meters from hospital, educational institutes, religious institutions and courts. कौन सा कथन सही है? चलिए, इसका सही जवाब है बी इज द राइट आंसर.
These guidelines are applicable throughout the country, not on the just NCR. Okay, the states are allowed to make suitable modification while implementing. Okay, next question from environmental ecology. Which of the following statements are correct regarding the Saras crane? Saras crane के बारे में पूछा गया है. It is the tallest of all the flying birds. It is endemic to the Indian subcontinent. Unlike many other cranes that make long migration, Saras crane are largely non-migratory in species. Or Saras crane is classified as a vulnerable of IUCN Red List. Option here and time start now. ओके इसका सही जवाब आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि आपको पता है इसमें आपको 2 गलत है तो 2 काटिए ना, और 4 में आंसर चाहिए. 1 3 तो दोनों में है, 4 तो सही है ही. सारस क्रेन फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इसलिए कि आप कह सकते हैं नहीं बिल्कुल कि एशिया में ये एंडेमिक है, ऐसा नहीं है. 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. SAFAR stand for System of Air Quality and Weather Forecasting and Research. SAFAR system is developed by Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, along with the Indian Meteorological Department (IMD) and the National Center for Medium Range Weather Forecasting. It provides location-specific information on air quality in near the real time, and it forecasts the 1 to 3rd days in the advance for the first time in India. करेक्ट मांगा गया, करेक्ट. चलिए इसका सही जवाब आई थिंक 1 2 3 सब सही है. ऑल आर करेक्ट. विच ऑफ द फ्लोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स स्टेट लोकेशन? इसमें कौन सा मैच नहीं है? कवाल तेलंगाना, बक्सा बंगाल, पाके असम, नागरहोल कर्नाटक. दिस इज सिंपल क्वेश्चन, और इसका जवाब बिल्कुल बिना समय गवाए असम में जाइए. पाकी असम में नहीं है भैया, पाके अरुणाचल प्रदेश में है. अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्नो लेपर्ड के बारे में सोचिए. It is a classified as a endangered in the IUCN रेड लिस्ट. It is the state animal of हिमाचल प्रदेश. इसके अलावा भारत के अलावा स्नो लेपर्ड जो है केवल पाकिस्तान में, रसिया और चाइना में मिलता है. क्या ये सही है? आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन सेकेंड सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज यू नो, इसलिए सिंपल हो गया क्योंकि आपको स्नो लेपर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए. इसमें IUCN में इसका रेड लिस्ट बिल्कुल एक नहीं है, तो एक को काट दीजिए. और जहाँ रही बात 3 का, तो ये रसिया ये भी गलत है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत जगह मिलता है. तो 2 इज़ द राइट आंसर, ओनली 2 इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. स्नो लेपर्ड का क्लासिफाइड वल्नरेबल है, जैसा कि आप जानते थे. इट इज़ द स्टेट एनिमल हिमाचल प्रदेश का, जो बिल्कुल सही था. स्नो लेपर्ड 12 देश में पाया था, नेपाल में, इंडिया में, भूटान में, चाइना में, मंगोलिया में, रसिया में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान. मतलब शॉर्ट में कहो तो बहुत देश में मिलता है. इन शॉर्ट इंडिया इट इज़ रिपोर्टेड द हैव ए प्रेजेंस इन कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है. अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मराइन लिविंग रिसोर्सेज. चलिए मराइन लिविंग और अंटार्कटिक मराइन लिविंग रिसोर्सेज के बारे में विचार करते हुए बताइए कौन सा इनकरेक्ट है. कंजर्वेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मराइन लिविंग रिसोर्सेज इज द पार्ट ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम. ओके, इट्स हेडक्वार्टर इन तस्मानिया इन ऑस्ट्रेलिया. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ द कन्वेंशन, और इनकरेक्ट मांगा गया है. तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका सही जवाब है ओनली 3. इंडिया पार्ट है नोट डाउट कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैराइन लिविंग रिसोर्सेज, जिसको हम लोग कमीशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैराइन लिविंग रिसोर्सेज भी कहते हैं, और इज द पार्ट ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम. ये अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम का हिस्सा है. इसका हेडक्वार्टर तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में है, जैसा बताया गया है. इसके 26 मेंबर है इंटरनेशनल बॉडी, और इंडिया भी इसके साथ शामिल है. अगला क्वेश्चन पे विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन इनकरेक्ट है अबाउट लोकपाल के संबंध में.
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको नालसा कहा जाता है, अलॉन्ग विद द लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन कंडक्ट लोक अदालत, इनके द्वारा लोक अदालत का मतलब पूरा तरह से कंडक्ट किया जाता है। लोक अदालत हैव बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस। जुडिक्शन द परमानेंट लोक अदालत इज अप टू 1 लाख। अवार्ड ऑफ द परमानेंट लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द ऑल द पार्टीज। स्टेटमेंट हियर एंड ऑप्शंस हियर एंड टाइम इज नाउ। चलिए, इसका सही जवाब आपको बहुत समय दे दिया गया। इसका सही जवाब है बी, ओनली 3 गलत है, क्योंकि ये 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख है जुडिक्शन इसका। जुडिक्शन द परमानेंट लोक अदालत अप टू 10 लाख, नॉट 1 लाख। बाकी सब सही थे। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में बताइए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एक पार्ट है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का, NRLM का। इट इज़ ए प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप सोचिए कौन सा सही है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का है? तो मेरे ख्याल से इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ 3 तो काट ही दीजिए और 1 और 2 के साथ चले जाइए। आंसर सही है, क्योंकि मैं ये ग्रामीण विकास मंत्रालय। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। दीनदयाल ग्रामीण उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एक स्किलिंग एंड प्लेसमेंट इनिशिएटिव जो कि मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट जैसा कि बताया गया था MORD का है। इट इज़ टास्क विद द डुअल ऑब्जेक्टिव एडिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इनकम्स ऑफ रूरल पुअर फैमिलीज एंड कैटर द कैरियर एस्पायरेशन ऑफ द रूरल यूथ। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM का एक हिस्सा है। DD दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना इज यूनिकली फोकस ऑन रूरल यूथ इंडिया यूथ बिटवीन द एजेज ऑफ 15 से 35 साल के पुअर families. It is a placement linked skill development program with allow skilling a PPP mode and assured placement in regular jobs in an organization not owned by the skilled person. जिसके पास स्किल हो उसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, जिसके पास स्किल नहीं वो आइए इस दीनदयाल ग्रामीण में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू समग्र शिक्षा अभियान के बारे में कथन बताते हुए बताइए कि कौन सा कथन दिए गए सही है। इट इज सबस्यूम्ड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान अंडर इट। ओके, द स्कीम फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स इंटीग्रेटिंग टू द 2TT टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी। चलिए, ये भी हल्का क्वेश्चन था क्योंकि आपको पता होगा समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। एब्सोल्युटली सी इज द राइट आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट अबाउट द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से क्वेश्चन है वह ऑब्जेक्टिव इसका क्या है। स्कीम 2 सप्लीमेंट करना एग्रीकल्चर का, मॉडर्नाइजेशन करना, मॉडर्नाइजेशन प्रोसेसिंग, डिक्रीज एग्रीकल्चर वेस्ट एंड यूटिलाइज द पोटेंशियल इन इट्स फिशरी सेक्टर, और इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। लेट्स सी and time start now. Okay, this is not a centrally sponsored scheme, you know about it. ये centrally sponsored scheme नहीं है भैया, ये तो है center sector scheme. So 1 is absolutely correct statement and 2 is incorrect. It is only one correct because the scheme has 2 component, a central sector scheme component and centrally sponsored component scheme. इसका 2 हिस्सा है, इसलिए आप इसको केवल केंद्र राज्य प्रायोजित नहीं, भारत मतलब केंद्र प्रायोजित नहीं बोल सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्ट अबाउट आयुष्मान भारत प्रोग्राम। आयुष्मान भारत इज इंटीग्रेटेड अप्रोच कंप्राइजिंग हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर। ओके, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स। ओके, लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। चलिए, इसका सही जवाब दोनों सही है, बोथ 1 and 2 आर राइट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इट्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। गरीब कल्याण मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत आता है। इट वॉज इनिशियली लॉन्च 2016, अभी हाल में लॉन्च किया था, बाद में लॉन्च किया था। इट बैकअप कोविड-19 पैंडेमिक। इट बैकअप द कोविड-19 पैंडेमिक। द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड टिल नवंबर 2020। चलिए बताइए सही है कौन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
इनमें से कौन सा कथन आपको सही लगता है? इसका सही जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा, मेरे ख्याल से समय हो चुका है। 1 2 3 इज द राइट आंसर। 1 2 3 इज द राइट आंसर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है और गरीब कल्याण योजना, और अभी लिंक कर दिया गया इसको। सभी चीज़ पढ़िए, पढ़ना है पढ़िए। कंसिडर द फ्लोइंग पेयर्स टर्म्स ऑफ सीन न्यूज कंटेक्शन टॉपिक्स: बेली 2 एक्सपेरिमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, CRISPR Cas9। ओके, थिंक अबाउट इट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है क्या? और ये जो CRISPR है वो पार्टिकल फिजिक्स से है क्या? और ये जो बेली 2 एक्सपेरिमेंट है क्या ये डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी से है? चलिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसमें पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो आपको लग नहीं रहा है कि इसमें कौन सा मैच है। चलिए जल्दी जल्दी सोचिए, समय समाप्त हो रहा है आपका। 16 का सवाल, और इसका सही जवाब है केवल और केवल 2 मैच है। आई मीन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज CRISPR 9 जो है वो गलत है। चलिए, इसका सही जवाब 2 ओनली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी से मिला हुआ है, बाकी एक दूसरे को पलट दिया गया है, CRISPR 9 और ये सब दोनों को। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? Integrity Pact (IP) is a powerful tool developed by the Transparency International to help the governments, businesses, and civil society fight corruption in the public contracting. Second, for public procurement in India, the Integrity Pact is enforced by the Lokpal. Okay, think about it. इनकरेक्ट पूछा गया, ध्यान रहे। चलिए, इसका तो सही जवाब आपको पता चल चुका होगा, बी इज़ द सही है, ये इनकरेक्ट है। लोकपाल कैसे, इससे कोई मतलब ही नहीं है। पब्लिक इंटीग्रिटी, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंटरनेशनल लेवल ILO एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, एंड इट इज़ द फर्स्ट ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी। गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO डिसाइड्स ऑन द मैटर्स ऑफ एजेंडा एंड बजट एज वेल एज elects the Director General. India holds a permanent seat in the governing bodies as one of the 10 states of the cheap industrial importance. Think about it. Question number 18. Okay, I think ILO के बारे में आपको पता होगा, ये सारे के सारे कथन सही है ILO में। ओके, अगला क्वेश्चन है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इज इंडिया फिक्स्ड बाय? किसके द्वारा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है? आई थिंक दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बट डोंट कंफ्यूज बिना RBI और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आई थिंक यू गॉट द आंसर। ओके, ए इज द राइट आंसर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वही बेंचमार्क निर्धारित करता है, न कि भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से ही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पार्ट ऑफ द इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? कौन कौन सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का हिस्सा है? गोल्ड है क्या? गोल्ड है। Foreign currency asset, special drawing rights. Option here. I think you got the answer once again. This is simple question, but think about it. If you have any problem, ask me. D is the right answer. 1, 2, 3, and 4 all are the part of the India's foreign exchange reserve. अगला क्वेश्चन है, matters related to visa and immigration policy is its guidelines and restrictions are handled by? किसके द्वारा हैंडल किया जाता है? ये सब वीज़ा से संबंधित जितनी पॉलिसी होती है आपको तो पता होगा, इसके ख्याल से, मेरे ख्याल से होम मिनिस्ट्री इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, INS कवराती ऑफ इंडियन नेवी रिसेंटली चर्चा में था। INS कवराती ये क्या है? बताइए, सोचिए, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आप सोच सकते हैं। चलिए, इसका सही जवाब है एक एंटी सबमरीन वारफेयर, जिसको बिल्ड किया गया अंडर प्रोजेक्ट 28 के द्वारा। नियरली 19% हमारा इंडिजिनली है। एंटी सबमरीन वारफेयर है, कार्वेटी बिल्ट प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाया गया है। नियरली 90% इंडिजिनियस कंटेंट इसमें। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज ब्राउट बाय दी फिनांस मिनिस्ट्री? क्या ये फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया जाता है? और ध्यान रहे, इसमें करेक्ट पूछा गया है। रिसेंटली द बेस ईयर ऑफ CPI इंडस्ट्रियल वर्कर वाज चेंज फ्रॉम 2001 से लेकर उसको 2016 कर दिया गया है, ताकि
रिफ्लेक्ट कर पाए चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न को। इट इज़ यूज फॉर द मेजरिंग द रिटेल इन्फ्लेशन, टू रेगुलेट द DA अलाउंसेस DA ऑफ द गवर्नमेंट स्टाफ एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एज वेल एज टू रिवाइज द मिनिमम वेजेस इन द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शंस हियर, टाइम स्टार्ट नाउ। पहला तो आपको लग रहा हो डेफिनेटली गलत है मेरे ख्याल से, आप सोच सकते थे इसके, क्योंकि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फाइनेंस मिनिस्ट्री से क्या मतलब है उसको। चलिए तो एक को काटिए धड़ाधड़ और सही जवाब ले जाइए। 2 और 3 सही जवाब है। 2 और 3 ओनली करेक्ट है, क्योंकि आपको पता होगा IL जो है वो लेबर ब्यूरो निकालता है। करंट अफेयर से है, इंडिया का सोल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य जो है, वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम विच कंट्री, कहाँ से लाया गया था INS विक्रमादित्य। चलिए सोचिए INS विक्रमादित्य कहाँ से लाया गया था। चलिए इसका सही जवाब है रसिया से लाया गया था INS विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन, नाग मिसाइल डेवलप किया गया DRDO से, ये क्या है नाग मिसाइल? शॉर्ट टर्म रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कन्वेंशनल वारफेयर ले सकता है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एंटी सबमरीन मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो फायर करता है, फॉरगेट होता है, टॉप अटैक करता है। ये तो हल्का क्वेश्चन है नाग मिसाइल के बारे में, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है D, एंटी टैंक है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पे काम करता है, टॉप अटैक कैपेबिलिटीज रखता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिलेशन से, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, इंक्लूड्स कंट्रीज, कहाँ से कंट्रीज के अंदर आते हैं? नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक यू ऑल्सो गॉट द आंसर। चलिए इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। 26 का D होना चाहिए, डेफिनेटली D इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द इंडिकेटर या इंडिकेटर्स यूज बाय IFPRI टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का इसमें पैमाना है? कौन चीज़ किस आधार पर निकलता है? अंडर न्यूट्रिशमेंट, चाइल्ड स्टैंडिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। Which is the right answer? I think this is also once again simple question. D is the right answer. 1 2 3 4 1 2 3 जितने हैं सभी के सभी इसके मतलब एक तरह से इंडिकेटर्स हैं। अगला क्वेश्चन है कोवी रैप क्या है? कोवी रैप क्या है? जल्दी सोचिए, आपके ऑप्शन ये रहे हैं। चलिए कोवी रैप एक प्रकार का आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब B है। एक लो कॉस्ट का डेवलप डिवाइस किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का खड़गपुर के द्वारा, टेस्टिंग डिवाइस है। और अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट के संबंध में, अब बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। सी वॉज द ब्रिटिश सोशलिस्ट, थियोपिस्ट, वोमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, राइटर, फिलैंथ्रोपिस्ट। सी वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ बोथ आयरिश एंड इंडियन रूल सेल्फ रूल। सी वॉज एन एजुकेशनिस्ट एंड हर contribution included being of one of the founders of the Banaras Hindu University, or all of the above. I think this is simple question about any Besant. Who know about the all of the above is the right answer. आर्ट एंड कल्चर की आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो बृहदेश्वर टेम्पल है क्या वो कर्नाटक में है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी। ओके, इट वॉज बिल्ड बाय द राज चोल प्रथम एंड टेम्पल इज द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। सही है? सोचिए अंतिम प्रश्न आपका। चलिए ये कर्नाटक में नहीं है, बेलूर में नहीं है, कर्नाटक में होगा लेकिन बेलूर में नहीं है। बृहदेश्वर टेम्पल आपको पता होगा। इसका सही जवाब है 2 और 3, ओनली 2 and 3 इज द राइट आंसर। ओके, इन दिस क्विज मैनर आई जस्ट आस्क क्वेश्चन एंड डिडंट डिटेल टॉकिंग अबाउट इट। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं है। अगर आपको इस तरह का तरीका सही लगता तो लिख भेजिए मुझे, वरना मैं फिर से वही पैटर्न पे आ जाऊँगा। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू।